A very good morning to all of you. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss permanent plant tissues. As you know, the plant tissues can be grouped into two categories based on their division capacity. ऐसे plant tissue जिनकी cell divide कर सकती हैं, they are called meristematic tissue, and we have discussed about the meristematic tissue in the previous class. Now we are going to discuss those plant tissues whose cells cannot divide, and they are called permanent plant tissues. परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ आर फाउंड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होती है. एक्चुअली होता क्या है, व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स डिवाइड, द डॉटर सेल्स जो बनती हैं दे आर इनिशियली लुक लाइक द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट सून दे डिफरेंशिएट इनटू द परमानेंट टिश्यू. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं, दे चेंज देयर कैरेक्टर्स, दे एक्वायर अ डेफिनाइट शेप, they acquire a definite size and they start performing a particular function. वो एक डेफिनेट शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं, डेफिनेट साइज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं. हियर यू कैन सी इनिशियली इट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल, बट सून इट चेंज इट शेप, साइज एंड बिकम द पार्ट ऑफ जाइलम एंड नाउ स्टार्ट कंडक्टिंग द वाटर. सो दिस प्रोसेस व्हेन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ definite shape, size and function cells, this process is called differentiation. So from here we can say the permanent tissues are formed by the differentiation of meristematic tissue. The second important thing that you should remember, these cells after differentiation lost their capacity to divide. अब इनमें division की capacity नहीं बचती है. Simple permanent tissues, the permanent tissues can be grouped into two categories, the simple permanent tissue and complex permanent tissue. If a permanent tissue is made up of only one type of cells, so the cells are not dividing, they are having definite shape and size and they are performing a specific function and they are single type of cell, so there will be simple permanent tissue. And if a permanent tissue is made up of more than one type of cells, जैसे जाइलम में होता है, ट्रैकिट्स होती हैं, वेसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन जाइलम, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट tissue. So in this video we are going to discuss about the simple permanent tissue and we will discuss each and every permanent tissue under few heading. कुछ characters के बारे में हम उनके बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो simple permanent tissue लोकेशन कहाँ है, उसकी मिलता कहाँ है. फिर हम बात करेंगे उसकी सेल्स की स्ट्रक्चर क्या है. फिर हम बात करेंगे क्या वो सेल्स जिंदा हैं या डेड हैं, उस परमानेंट टिश्यू में सेल्स जिंदा हैं या डेड है. फिर हम देखेंगे कि उन सेल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है, दैट मीन्स उस टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस है या नहीं है. एंड फाइनली हम बात करेंगे कि वो परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट की बॉडी में काम क्या करता है. सो द फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा. द पैरेन्काइमा इज द सिंपल एंड द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट. प्लांट के टिश्यू में कोई भी ऑर्गन, फॉर सपोज एक फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट पे बाहर एपिडर्मिस होगी और इसके अंदर जितना भी स्पेस है, दिस एंटायर स्पेस इज फिल्ड बाय द टिश्यू एंड दैट टिश्यू विल बी द पैरेन्काइमा टिश्यू. दैट मीन्स द पैरेन्काइमा टिश्यू इज द फिलिंग टिश्यू और यू कैन से द पैकेजिंग टिश्यू, जो किसी भी प्लांट ऑर्गन को अंदर से सॉलिड बनाता है, उसको अंदर की जो स्पेस है उसको भर देता है. Here you can see the diagram and in this diagram you can see the cells are having the thin cell wall, they are having the large vacuole, that is the characteristics of plant cell. The nucleus is there, chloroplast is there, and you can see in between the two cells this black color is representing the space between these two cells and this space will be the intercellular space. So the cells of parenchyma tissue are unspecialized. कोई खास स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको देखने में नहीं मिल रहा, सिंपल प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है. They are having the thin cell wall and intercellular space is present between, that means इस टिश्यू की जो पैकेजिंग है वो टाइट नहीं है, सेल्स पास पास फंसी हुई नहीं है, उनके बीच में स्पेसेस हैं एंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर देयर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू? ये टिश्यू काम क्या करता है? बेसिकली द पैरेन्काइमा टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज. अगर ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है. एज यू नो द फ्रूट इज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन. जो पैरेन्काइमा टिश्यू रूट और स्टेम में है, दैट विल स्टोर द मिनरल्स एंड वाटर. So basic function of the parenchyma tissue is the storage of food, mineral and water depending on the location of parenchyma tissue. But in the leaves, the parenchyma tissue that is found, leaf के अंदर जो parenchyma tissue present होता है उसकी cells में chlorophyll present होता है. And due to the presence of chlorophyll, this parenchyma tissue that found in leaf is able to perform the photosynthesis. And that is why this specific parenchyma tissue present in leaf is called chlorenchyma. सिमिलरली इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट जो पानी में उगते हैं,
जैसे लोटस हो गया एटसेट्रा, उनको पानी में ऊपर सरफेस पे बने रहना पड़ता है। आप भी जब पानी में तैरने के लिए जाते हो, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप एक वाटर ट्यूब, आप एक एयर ट्यूब का यूज़ करते हो। सो सिमिलरली बायोंसी प्रोड्यूस करने के लिए एक्वेटिक प्लांट की जो पेरेंट कायमा है उसके बीच में, सेल्स के बीच में बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़, एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसके से प्लांट को बायोंसी मिलती है। प्लांट वाटर में एफ्लोट बना रहता है, एंड दैट इज पेरेंट कायमा दैट हैव्स द एयर कैविटी एंड फाउंड इन द aquatic plant, that is called parenchyma. So this is the first simple permanent tissue. Now let's move towards the second permanent tissue, दैट इज़ द कॉलनकाइमा। आपने देखा होगा प्लांट के कुछ ऐसे, कई बार आपने देखा होगा प्लांट्स को अगर हम मोड़ भी दें या उसको बैंड भी कर दें तब भी वो प्लांट का वो पार्ट, स्टेम या लीफ टूटता नहीं है, एंड इट इज़ ड्यू टू द कॉलनकाइमा टिश्यू। कॉलनकाइमा टिश्यू हमेशा प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा। फॉर सपोज ये लीफ या फिर एक आप मान लीजिए लीफ स्टॉक है, इसके बाहर यहाँ पे एपिडर्मिस होगी और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हेयर द कॉलनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। आप कभी किसी लकड़ी के ऊपर से ऊपर की उसकी एपिडर्मिस उतार कर देखें तो जो एपिडर्मिस की जो आप उतारते हैं उसको आप तोड़ नहीं पाते, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा। सो कॉलनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट जस्ट बिनीथ द एपिडर्मिस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये भी लिविंग सेल्स का बना हुआ है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी इन द डायग्राम, डिफरेंट सेल्स आर देयर। यू कैन सी एक तो टाइटली पैक्ड सेल्स है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो सकते हैं बट बहुत कम होंगे, पैरेंकाइमा के कंपैरेटिवली कम होंगे। एंड यू कैन सी द सेल वॉल इन ब्लू कलर, दे आर वेरी थिक and especially on corners the cell wall is very much thick। तो इतनी थिक सेल वॉल का आपको सीधा सा मतलब मिलता है कि सेल वॉल इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट सेल। और एक ऐसा प्लांट टिश्यू जिसकी सेल वॉल ऑटोमेटिकली थिक है, तो इसका मेन काम क्या हो गया, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर अगर प्लांट पे बेंडिंग वगैरह होती भी है तो वो टूटे ना प्लांट का वो पार्ट। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये टिश्यू, ये प्लांट को आप बोल सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बेंडिंग होने पे किसी प्लांट पार्ट के वो प्लांट पार्ट टूटे ना। हियर यू कैन सी द टिश्यू इंटरसेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट, सेल वॉल आर वेरी थिक एंड यू कैन सी वैक्यूल इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट मीन्स दीज सेल्स आर लिविंग बट दे हैव वेरी थिक सेल वॉल। इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक देखने को मिलती है। सो दिस इज द कॉलनकाइमा टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। Now one important thing that you should understand, that is the longitudinal section and transverse section. For suppose this is something, this is a object, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से काटूँ, हॉरिजॉन्टली काटूँ, तो ये जो सेक्शन कहलाएगा। फिर मैं इसको ऊपर से अगर देखूँगा तो मुझे इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं, जैसे ऑब्जेक्ट है इसको मैं लेटरली काटूँ, दैट मीन्स जो सेक्शन मेरा कटे वो ऊपर से नीचे तक इस तरह कटे, तो ये इस तरीके से खुल जाएगा ऑब्जेक्ट ना। सो दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आई विल सी, सो दैट इज कॉल्ड द लेटरल सेक्शन। सो इफ अ ऑब्जेक्ट इज कटेड लेटरली, सो दैट इज कॉल्ड लेटरल सेक्शन, एंड इफ इट इज कट हॉरिजॉन्टली दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। सो दिस इज द लेटरल सेक्शन ऑफ द पैरेंकाइमा एंड दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द कॉलनकाइमा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।